question is answered. Okay, now what is this subject all about? Computer graphics में आप basic सीखने वाले हो, basic starting from pixel to line drawing to object drawing to animation, okay, to reflections, all kind of transformation, rotation, reflection. Then you're going to learn about clipping, okay. Then you're going to learn about clipping. Clipping किसको बोलते हैं? Clipping is the process of displaying. How will you transform an image from real world to a 2D image, then from 2D to 3D image? All those things are going to come into this subject. Okay, this subject comprises from your basic scan conversion. Scan conversion means drawing. From your basic scan conversion till your animation. Okay, this is the subject about. Now in this subject, okay, इस subject से मेरे को base मिलेगा. इस base को लेकर के आगे I'll go to multimedia subject, and वहां पर उसके बाद में एक और एक subject है which is called as SPCC, System Programming and Compiler Construction, जिधर आप loaders वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, which is kind of related to your gaming. Okay, gaming में loading का क्या concept है, वहां पर वो सब कुछ आता है. If you're going to ask me कि actually engineering में आपको game बनाने कोई सिखाने वाला है क्या, कोई subject है क्या, ऐसा कोई तो नहीं, ऐसा कोई subject नहीं. Okay, but ultimately leading to that is all these subjects. Okay, now next point I have to explain about this subject computer graphics is कि ये subject अगर आपके examination point से मैं अगर देखूं examination point से तो ये subject कैसे रहने वाला. So out of 100%, okay, 90% this subject is about derivations. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ लाइन ड्रॉ करने, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स है ऑलरेडी. हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग आज स्ट्रेट अवे स्क्रीन पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बट वो लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन कमांड यूज करते हैं. ओके, मे बी लाइन कमांड जो आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हो, ड्रॉ लाइन, पुट पिक्सल, या ड्रॉ सर्कल. सर्कल वाला आप जब कमांड पास करते हो तो एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है. सो ऑल दीज आर कमांड्स जो पीछे एक एल्गो चलता है जो ये बनाते हैं, और ये एल्गो का डेरिवेशन आपके सब्जेक्ट में है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द डेरिवेशन एंड उसके ऊपर बेस्ड सम्स रहेंगे. ओके, सो आपको एग्जाम में या तो डेरिवेशन पूछा जाएगा उस टॉपिक पे, या तो उस टॉपिक पे सम पूछा जाएगा, दोनों में से एक. एंड 10% जो है वो सिर्फ और सिर्फ थियोरी होगी, theoretical, मतलब सिर्फ मगअप वाला पॉइंट है, which is of course concept based, but 90% is derivation and sum. So this is from the examination perspective. Okay, from the application perspective you'll really understand कि होता क्या है. जब आप टीवी खरीदने जाते हो और आप बोलते हो, आपको साथ में आपका सेल्स पर्सन बोल रहा है इसका पिक्सल बहुत क्रिस्प क्वालिटी का है. ओके, व्हाट एग्जैक्टली डज ही मीन बाय क्रिस्प क्वालिटी? कोई बिस्किट थोड़ी ना है जो उसने खा के देखा है कि बहुत क्रिस्प बिस्किट है. When he says crisp pixel, what exactly does he mean? So we're going to understand all that. So now let's first understand what is a pixel. Okay, and before I proceed, are you going to send the recorded lecture? Yes. Is the subject related to game engineering? Kind of, because of animation. Okay, so we'll start with pixel. Somebody had answered, किसी ने तो लिखा था, pixel is pictured elements. Absolutely no. What is a pixel? My question is, what is a pixel? The smallest element. हाँ बोलो बोलो, किसी ने तो आंसर किया. स्मॉलेस्ट क्या? Is anybody answering? Hello, Tejal, are you answering? It's okay even if you answer it incorrectly. That's okay. Just tell me whatever is your thought process. Smallest, okay. Smallest element of a picture. Okay, once again, बहुत सारे आंसर आ गए. Smallest illuminated area on a screen. ये तो भाई साहब एकदम ही इंजीनियर है. एक सेकंड ना.
Just a second, okay? Okay, तो I'll just explain quickly. Most of you all जो आंसर आप लोगों ने दिए हैं कि smallest unit of the screen, smallest illuminated area on a screen, okay, ये जो आंसर है illuminated area on the screen and all that, it's a perfect engineering answer actually. दूसरा smallest element of a picture which is made of, I don't know, made of क्या, तेजल आगे बोलो कुछ तो, smallest part of a picture, okay, so everybody kept on saying कि smallest part of a screen, okay. Now let me explain. तो ये मेरा लैपटॉप है, okay? ये हमारा स्क्रीन है. So a pixel is, आपकी स्क्रीन जो है वो ग्रिड में डिवाइडेड होती है, right? It's like this. तो ये एक छोटा सा भी ग्रिड जो है ना, this is called as a pixel. So by that logic, what is a pixel? It is the smallest indivisible, okay? मतलब आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, पार्ट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है? तो पार्ट ऑफ द स्क्रीन बोलो या पार्ट ऑफ द इमेज बोलो एंड ऑल दैट, ओके. नाउ व्हाट हैपेंस इज जब आप एक स्क्रीन खरीदने जाते हो, ओके, एक टीवी खरीदने जाते हो और एक लैपटॉप खरीदने जाते हो, कुछ भी अगर आप खरीदने जाते हो, आपको सेल्स पर्सन बोलता है इसकी पिक्सल क्वालिटी बहुत क्रिस्प है और दिस पिक्सेल्स आर रियली एक्यूरेट और एकदम फाइन क्वालिटी के पिक्सल है. So what exactly does the salesperson mean by crisp pixel quality? What do you mean by crisp pixel quality? इसका क्या मतलब होता है? बिस्किट तो है नहीं कि क्रिस्प होगा. तो why do they keep on using the word crisp? Sharp, okay, somebody else is saying sharp. Now sharp भी अगर मैं बोलूं तो क्या मतलब है? Clear screen होगी ज़्यादा, HD quality. Clear, HD, ये सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग सुनते आए हैं, बट इनमें से एक की भी मीनिंग हम लोग को समझती है कि लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. शार्प का मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे क्लियर, फिर मैं पूछूंगी क्लियर का मतलब क्या हुआ, फिर आप बोलोगे हाई क्वालिटी पिक्चर है, मतलब क्या हुआ? मतलब अभी तक आपने एक भी चीज का आंसर नहीं दिया, ओके. होल्ड ऑन टू दिस थॉट प्रोसेस. शार्प का मतलब क्लियर, क्लियर का मतलब एचडी, एचडी का मतलब क्रिस्प, व्हाटएवर, ओके. एक का भी आंसर नहीं आया. मोर वेरिएंट्स ऑफ कलर, नो, दैट्स नॉट द आंसर. सो लेट मी जस्ट अभी थॉट प्रोसेस अपना होल्ड करो. अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है. अभी तक हमको आंसर मालूम नहीं है. शार्प का आंसर नहीं मालूम, क्लियर का नहीं मालूम, एचडी का नहीं मालूम, दूसरा क्या वर्ड था, क्रिस्प पिक्चर क्वालिटी, ये सब नहीं मालूम है. इसका मतलब मेरे को नहीं समझता. फिलहाल आपको मैंने आंसर नहीं दिया. नेक्स्ट मैं आपको पूछ रही हूँ व्हाट इज रेजोल्यूशन. इसका ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. रेजोल्यूशन. व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रीन? इसका मैं आपको आंसर देती हूँ. नहीं, ये देखो, आप जो आंसर्स मेरे को दे रहे हो, डायमेंशंस, किसी ने बोला रेजोल्यूशन मींस डायमेंशन. सो ऑल दीज इंडिकेट्स टू मी क्लियरली कि हमको मींस कंप्यूटर इंजीनियर्स को लगता है कि हमको कंप्यूटर समझता है, बट एक्चुअली हमको समझता नहीं. अब होता क्या, द मोमेंट यू एंटर इनटू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, योर फादर और योर अंकल और व्हाटएवर फील्स दैट नाउ यू आर अ चैंप ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड दे विल गो एंड गेट यू, चल मेरे को एक टीवी खरीद के दे दे, तू कंप्यूटर इंजीनियर, तेरे को बहुत समझता है कौन सा पिक्चर सही होना चाहिए क्या, या कंप्यूटर ही खरीद के दे दे, व्हाटएवर. सो
Now whatever answer you all are giving, how color is displayed means resolution, dimension means resolution, no, these are not resolution. ये सब हमारी understanding है. Now let me give you an actual answer. How many pixels per inch of an image? This is more close of an answer. Resolution मतलब क्या? Resolution का मतलब होता है number of pixels, okay, that can fit into your screen without overlapping. Okay, fit into your screen without overlapping. मतलब जितने पिक्सल मेरे स्क्रीन में एक टाइम पे बैठ सकते हैं बिना ओवरलैप करे हुए, उसको मेरे स्क्रीन का रेजोल्यूशन बोलेंगे. ओके, सो बाय दैट लॉजिक, ये मेरी स्क्रीन है. अगर ओके, इफ दिस इज माय स्क्रीन, अगर इसके अंदर इफ आई इंक्रीज द रेजोल्यूशन, okay, hear my question correctly, if I increase the resolution, then what will happen to the size of the image? Increase the resolution, then what will happen to size of image को साथ में क्या होगा? Question mark. अगर मैं resolution increase करूंगी ना, तो मेरा number of pixels छोटे हो जाएंगे, because what is resolution? Number of pixels that can fit into the screen. If I increase resolution, okay, if I increase resolution, then what will happen? Number of pixels will increase. अभी पिक्सल अगर इंक्रीज होंगे, अभी ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ओके, फॉर एग्जांपल अभी 1500 पिक्सल है, ये 1500 डब्बे दिख रहे हैं आपको, ठीक है, 1500 पिक्सल्स आर देयर, ओके, इन दिस स्क्रीन एज ऑफ नाउ. सो अगर मैं रेजोल्यूशन इंक्रीज करूंगी तो 2500 पिक्सल आने वाले हैं सपोजिंगली. तो मेरा लैपटॉप का साइज तो चेंज नहीं हुआ, लैपटॉप का साइज तो अभी भी उतना ही है, पिक्सल का साइज छोटा हो जाएगा जस्ट टू गेट मोर नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन द सेम स्क्रीन. सो व्हाट विल हैपन टू साइज ऑफ द इमेज इज, साइज ऑफ द इमेज विल डिक्रीज. ओके, size will never remain same, please understand. Size of the image will decrease. What will happen to quality of the image? Quality of the image will increase. अभी ये चीज क्या बोल रही हूँ मैं आपको अभी इसका ऑपोजिट से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है. What will happen if I decrease the resolution? ठीक है, decrease the resolution मतलब क्या? कम पिक्सल, मतलब मेरा लैपटॉप तो उतना ही साइज का रहा, डिक्रीज करूंगी रेजोल्यूशन तो क्या होगा? मोटे मोटे पिक्सल्स आएंगे, ऐसे बड़े बड़े, जहां पहले 2500 पिक्सल्स थे अब उसके जगह पे सिर्फ 500 पिक्सल्स आ गए. तो if I decrease resolution, okay, then my image का size will increase. याद करो जब भी आप गेम खेलते थे पहले, GTA 3, 4 में भी, आप गेम को जब एग्जिट करके बाहर आते थे तो आपके डेस्कटॉप के आइकन अचानक से एकदम बड़े हो जाते थे. ओके, जब आपके डेस्कटॉप के आइकन बड़े हो जाते थे इसलिए क्योंकि आपका गेम का रेजोल्यूशन जो था वो बहुत कम था. ओके, तो रेजोल्यूशन कम होता था तो इसके लिए इमेज की साइज बड़ी बड़ी दिखती थी और इमेज की क्वालिटी कैसी हो जाती थी? गंदी, फटी हुई स्क्रीन दिखती थी. क्वालिटी ऑफ इमेज, ओके, वाज डिस्टॉर्टेड. ओके, क्वालिटी ऑफ द इमेज डिक्रीजेस. फिर आप क्या करते थे? आप जाकर के राइट क्लिक करते थे, पर्सनलाइज में जाकर के अपना रेजोल्यूशन सही करते थे. रेजोल्यूशन सही होने पर आपकी इमेज की क्वालिटी नॉर्मल हो जाती थी. ओके, आई विल गो बैक अगेन, ठीक है, वन सेकेंड. व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रीन? कितने पिक्सल आपके एक टाइम पे एक स्क्रीन पे बैठ सकते हैं उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन. Number of pixels that can fit into the screen without overlapping is called resolution of the screen. Okay, if I increase the resolution तो ज्यादा पिक्सल्स आएंगे, ज्यादा पिक्सल आएंगे तो छोटे छोटे आने पड़ेंगे, छोटे छोटे आने पड़ेंगे इसलिए साइज ऑफ द इमेज विल डिक्रीज. जितनी इमेज छोटी रहेगी ना, क्योंकि इमेज छोटी मतलब ज्यादा पिक्सल. if an image is formed using more pixel, if an image is formed using more pixel, then it is a clear image. Okay, so zahir si baat hai, agar size of the image will decrease then quality of the image will increase. Okay, next is what will happen if I decrease the resolution? If I decrease the resolution,
then the image size will increase because बड़े बड़े pixels रहेंगे and quality of the image will decrease. Okay, now let's go back to the one point जो हमने ये छोड़ा था, sharp, clear, HD, crisp pixel के बारे में छोड़ा था. जब मेरी इमेज बड़ी बड़ी हो जाती है, एकदम फैली हुई, ओके, सपोजिंगली एक सर्कल है, ओके, ये ऐसा दिख रहा है. जब मैं इसको एकदम जूम करूंगी, जब पेंट में आपने कोई लाइन बनाए थे ऐसी, अभी आपको ये लाइन बहुत सही से दिख रही है बिना कोई प्रॉब्लम के, लेकिन जब आप एक्चुअली इसको स्ट्रेच करके देखते हो ना, एकदम जूम करके देखते हो, तो वो आपको ऐसी दिखाई देगी स्टेप में, ऐसे सीढ़ियों के फॉर्म में दिखेगी ऐसे. क्यों? बिकॉज हर एक पिक्सल जो है, पिक्सल एक स्क्वायर शेप का होता है. पिक्सल इज नेवर in round shape because it is in square in shape. The more you stretch, okay, तो आप स्क्रीन पे क्या होते हैं, एक दो पिक्सल ही दिखते हैं, तो वो प्रॉपरली आपको बॉक्स शेप में दिखाई देता है. ओके, therefore because it is in box shape, तो वो आपको क्या दिखता है, distorted दिखता है, distorted. Okay, right? Now let's understand when somebody told me sharp, उसका मतलब क्या था. When he said clear, उसका मतलब क्या था. Okay, when he said high definition, what exactly was he trying to say? अगर मैं एक फुल स्टॉप को, okay, एक फुल स्टॉप को ड्रॉ करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए एक या दो पिक्सल यूज कर रही हूँ, तो वो फुल स्टॉप मेरे को स्क्वायर शेप में ही दिखाई देगा because I'm using one single pixel. But if I'm using multiple pixels, okay, जैसे ये मेरे मल्टीपल पिक्सल्स है, बहुत सारे पिक्सल्स है, और उसके बाद में अगर मैं एक फुल स्टॉप एक पिक्सल यूज करके दिखा भी रही हूँ, so you will never realize कि वो जो इमेज है वो एक्चुअली स्क्वायर शेप का है या वो प्रॉपरली राउंड शेप का है या क्या, बिकॉज इतने पिक्सल होने की वजह से स्क्रीन पिक्सल की साइज एकदम माइन्यूट हो जाती है. तो ह्यूमन आईज को ऐसा इल्यूजन होता है that it is not square in shape but round in shape. Okay, so when somebody says sharp, okay, so होता क्या है exactly, वो मैं आपको explain करती हूँ. जब there is something called as aliasing and anti-aliasing effect, ठीक है, aliasing ये भी आपके सिलेबस में आता है, aliasing and anti-aliasing effect, ठीक है. Okay, अब let's understand aliasing effect किसको बोलते हैं. First, अगर आपके जो इमेजेस प्लॉट किए हुए हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है. अगर मैं एक ऊपर से इमेज क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, नाउ सपोजिंगली दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर दैट आई एम ड्राइंग. ये आपके पिक्सल्स हैं. सपोजिंगली मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप ड्रॉ किया, ओके. रियल में क्या होगा, ये फुल स्टॉप एक्चुअली बॉक्स शेप का रहेगा. ओके, नाउ हाई टेक्नोलॉजी की स्क्रीन जो होती है, ओके, हाई टेक्नोलॉजी की जो स्क्रीन होती है वो क्या करती है, वो ये बॉक्स का जो साइज है ना, इस बॉक्स का साइज पे कैलकुलेशन परफॉर्म करती है. ओके, कैलकुलेशन परफॉर्म करके एक्चुअल जो साइज होनी चाहिए, सपोजिंगली दिस इज 2,2, ओके, एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे भी 2, ये पिक्सल का लोकेशन, बट ये एक्चुअली 2,2 नहीं है. ओके, ये 1.997297 कॉमा 1.86798, ये उसका पिक्सल का प्लॉटिंग है एक्चुअली. तो जब वो प्लॉट होने जाता है, ओके, तो जब वो एक्चुअली प्लॉट होने जाता है ये एक्चुअल कैलकुलेशन वाला, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही आता है जो उसका एक्चुअल कैलकुलेशन है. As a result of which it is called as sharp, because the calculation is sharp, accurate. जहां प्लॉट होना चाहिए उतना ही, पूरा पिक्सल को एग्रीगेट नहीं करता. ओके, तो जो इल्यूजन होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता, स्क्रीन का इल्यूजन,
दिस बॉक्स इफेक्ट, स्टेयर स्टेप इफेक्ट जिसको बोलते हैं, जब आप इसको जूम करोगे तो ऐसे स्टेयर स्टेप के जैसा दिखाई देते हैं हर चीजें, हर लाइन, एक लाइन ऐसी नहीं दिखेगी आपको, ऐसी दिखेगी। पेंट में आपने देखा होगा जब आप स्ट्रेच करके ड्रॉ करते हो। सो दैट स्टेयर स्टेप इफेक्ट इज नोन एज एलियासिंग। एलियासिंग इफेक्ट को कम करने के लिए एक इल्यूजन बनाते हैं, ओके, दैट इल्यूजन is known as anti-aliasing. Anti-aliasing is nothing but techniques that you apply, okay, to get accurate pixel plotting. Okay, so one of the technique is actual calculation, जहां आप जो pixel है उसको actually ही calculate कर रहे हैं. All these things will come in the future. Right now, we need not worry about all this. Let's go back to the simple definitions to start the subject. Pixel किसको बोलते हैं? Smallest indivisible part of the screen or indivisible part of the image is called as pixel. What is resolution? Number of pixels that can fit into your screen without overlapping is called resolution of a screen. If I increase the resolution, तो ज़्यादा pixel आएंगे, ज़्यादा pixel आएंगे, तो size of the image will decrease, but quality of the image will increase. Okay. The next is take the example of radio communication. ठीक है? अभी तुम्हारा जो फोन है जिसके ऊपर तुम लोग FM सुन रहे हो. The next is what will happen if I decrease the resolution. If I decrease the resolution, okay, the number of pixels would be less. Number of pixels less होंगे मतलब वो बड़े बड़े होंगे अगर पिक्सल, तो इमेज की साइज भी इंक्रीज हो जाएगी एंड क्वालिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज. ओके, क्वालिटी ऑफ द इमेज डिक्रीज होने का मतलब होता है कि इमेज के बीच में इमेज कंटिन्यूअस नहीं दिखता है, इमेज डिस्टॉर्टेड दिखता है. डिस्टॉर्टेड मतलब फटा हुआ दिखता है इमेज. इट्स नॉट अ स्मूथ इमेज. यू कैन सी के एकदम सीढ़ी के जैसा एक स्टेयर स्टेप इफेक्ट बना हुआ है, आपकी लाइन भी स्ट्रेट नहीं है. ओके, समथिंग लाइक दैट. नाउ नेक्स्ट इज I'll start with the very first algorithm, okay, called as DDA, Digital Differential Analyzer Line Drawing Algorithm. Okay, any question till now? किसी को पिक्सल और रेजोल्यूशन का डेफिनेशन नहीं समझा है? I'll start with the algorithm. Okay. तो अभी ये एल्गोरिदम क्या है, इसका एक डेरिवेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और इसके ऊपर अपन 2 सम करेंगे. दैट इज दी एजेंडा फॉर द डे. ओके, डेरिवेशन में एकदम सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगी. कॉलेज में आपको 8 केसेस के थ्रू बताया जाएगा. आई विल एक्सप्लेन यू गिविंग 1 एग्जांपल. आपको 8 केस आ जाएंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. बट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये करता क्या है. लाइन ड्रॉ करना है बेसिकली. ओके, तो जब भी हमें को लाइन ड्रॉ करना होता है, सो व्हाट डू आई नीड? ओके, exactly 2 points. 1 second, let me just quickly start. Okay, line drawing. If I have to draw a line, I need what? I need 2 points. Okay, तो DDA बोलता है कि आपको 2 पॉइंट चाहिए. आपको 2 पॉइंट दिए गए होंगे. ये रहा आपका पहला पॉइंट, ये रहा आपका सेकेंड पॉइंट. ओके, सो आइडियली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा लेके ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे. ओके, बट DDA ऐसा नहीं करता है, या सिस्टम कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है. कंप्यूटर को चाहिए कि पहला पॉइंट अगर तुम्हारा x1 y1 ये है और तुम्हारा लास्ट पॉइंट xn yn ये है, तो मेरे को इन बिटवीन के पॉइंट्स दो. क्योंकि नॉट नेसेसरी कि लाइन सीधी ऐसी जा रही है. लाइन कुड गो लाइक दिस, 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 फिर ये भी यहाँ पे भी पहुंच सकती है. सो इन बिटवीन जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स, कनेक्टिंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करना है ये हमको DDA बताएगा. Because for drawing a line, I need 2 points, and between those 2 points, I need the connecting points for drawing the entire line. Okay, तो मेरे को वो connecting points चाहिए. Okay, so now let's see कि connecting point कैसे आएंगे. तो DDA का लॉजिक क्या है? Of course, DDA का लॉजिक कहीं पे तो फेल हुआ है.
Okay, this is DDA algorithm. डिजिटल, पहला वाला D stands for डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ठीक है। ये कहीं तो फेल होता है, as a result of which there is another algorithm called as Bressenham line drawing algorithm, जो कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिलहाल सिंपल वाला पहला algorithm आपके सब्जेक्ट का, which is DDA algorithm, ओके। अब DDA भाई साहब क्या बोलते हैं? DDA बोलता है कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे ना, पहली बार DDA बोल रहा है कि मैं स्लोप का फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो या तो डेल्टा एक्स, ओके, या +1 या -1 होगा, या तो डेल्टा वाई और ओके और डेल्टा वाई +1 या -1 होगा। मतलब क्या बोलना क्या चाह रहा है +1 -1, ओके। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। ये वाले क्वाड्रेंट में देख रहे हो, दिस वन, ओके, दिस इज माय फर्स्ट ऑक्टेंट, ओके। ये मेरा पहला क्वाड्रेंट है, ओके, ये मेरा पहला क्वाड्रेंट है, उसके अंदर मैं फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रही हूँ। अगर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगी, ओके, तो ज्यादा पॉइंट्स किसके आ रहे हैं? एक्स के ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं या वाई के ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं? व्हाट डू आई मीन बाय ज्यादा पॉइंट्स? लेट्स सी। ये अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ओके, तो आपको दिख रहा है इधर ज्यादा एक्स के पॉइंट्स आ रहे हैं, एक्स बड़ा है, वाई के पॉइंट्स कम है। मतलब क्या? इधर पहला एक्स, सेकेंड एक्स ये है, थर्ड एक्स ये है, फोर्थ एक्स ये है, फिफ्थ एक्स ये है, ज्यादा एक्स के पॉइंट्स आते जा रहे हैं, ओके। बट वाई ज्यादा नहीं आए। देखो एक्स की कितने सारे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे आ रहे हैं। बट वाई के अगर देखने जाओ तो वाई के इतने नहीं है, उतने नहीं है जितने एक्स के आ रहे हैं, ओके। तो डीडीए भी वही बात कर रहा है। डीडीए बोल रहा है कि जब भी आप एक लाइन ड्रॉ करोगे कोई भी एक ऑक्टेंट में, तो या तो एक्स बड़ा होगा या तो वाई बड़ा होगा, ओके। तो जो भी बड़ा है उसको बाय +1 आप इंक्रीमेंट करो, और दूसरे वाले को अकॉर्डिंग टू द स्लोप्स फॉर्मूला आप इंक्रीमेंट करो, ठीक है। सो इस ऑक्टेंट में ज्यादा बड़ा कौन है? ज्यादा बड़ा हम लोग को दिख रहा है एक्स है, वाई थोड़ा छोटा है। सो आई एम सेइंग डेल्टा एक्स जो है +1 से इंक्रीमेंट होगा, डेल्टा वाई जो है वो अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट होगा। अकॉर्डिंगली मतलब ये स्लोप के फॉर्मूला में मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूं, ये वाले स्लोप के फॉर्मूला में, तो y डेल्टा x के जगह पे मैंने +1 डाला, फिर डेल्टा y मेरा क्या हो जाएगा? +m, ओके। सो अगर मेरा डेल्टा x +1 से इंक्रीमेंट हुआ तो डेल्टा y मेरा +m से इंक्रीमेंट हुआ। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट ऑक्टेंट, इस ऑक्टेंट में देखते हैं। अगर इस ऑक्टेंट में एक लाइन रहेगी तो ऐसी रहेगी। इस ऑक्टेंट में कभी भी लाइन ऐसी तो नहीं बन सकती, क्योंकि वो ऑक्टेंट क्रॉस कर जाएगी ना। इंक्लिनेशन उसका कैसे रहेगा? हमेशा ऐसा ही कुछ रहेगा इंक्लिनेशन। तो इस ऑक्टेंट में ज्यादा बड़े पॉइंट्स किसके आ रहे हैं? चेक करते हैं। ज्यादा बड़ा क्या आ रहा है? एक्स बड़ा आ रहा है या वाई बड़ा आ रहा है? I'll show you again. ये रहा आपका लाइन, इसमें रहा ये x, इसमें रहा ये y। तो ऐसा लगता है कि ज्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है x बड़ा है कि y बड़ा है। अगर मैं यहाँ पर लूँ तो आपको दिख रहा है y इज बिगर, ओके। सो इधर y बड़ा आ रहा है। सो व्हाट यू विल डू इज, अगर y बड़ा आ रहा है सो यू आर सेइंग डेल्टा y इज इक्वल टू +1 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू क्या? लेट्स सब्स्टिट्यूट एंड सी। इस फॉर्मूला में अगर मैंने y के जगह पे +1 डाला तो डेल्टा x वुड बी +1 अपॉन m, ओके, +1 अपॉन m। डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑक्टेंट। अगर इस ऑक्टेंट में
एक लाइन रहेगी, तो ज्यादा बड़ा क्या है, x या y? ज्यादा बड़ा आपका y है, ओके। y विल बी +1, बट x क्या रहेगा, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, x क्या रहेगा, x इधर माइनस रहेगा। ऐसा अपने को लगता है कि x माइनस रहेगा, लेकिन x माइनस नहीं रहेगा, ठीक है, x माइनस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो सब्स्टिट्यूट जब मैं +1 कर रही हूँ y के जगह पे, ठीक है, y के जगह पर अगर मैं +1 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो डेल्टा x विल डेफिनेटली कम एज +1 अपॉन x, +1 अपॉन m। तो डीडीए भाई साहब ने क्या बोला, या तो x +1 होगा या तो y +1 होगा, और जो दूसरा वेरिएबल है दैट विल बी इंक्रीमेंटेड अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मतलब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके जो भी आया वो, ओके। नेक्स्ट लेट्स सी दिस सेल। इधर x बड़ा है या y बड़ा है, x बड़ा है, तो हमारा पॉइंट क्या आएगा, डेल्टा x विल बी, अब मेरे को बताओ डेल्टा x इधर -1 रहेगा या +1? -1, करेक्ट। डेल्टा x will be -1 and delta y will be -m, ओके। ये जो आपका सेकेंड वाला रहता है ना वेरिएबल, दैट इज अ डेरिवेबल, दैट इज डिराइव्ड बेसिस ऑफ द वैल्यू यू सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट वन, बट पहला वाला जो है वो तो करेक्टली आएगा डिपेंडिंग ऑन कौन से क्वाड्रेंट या ऑक्टेंट में है हम लोग, ओके। नेक्स्ट, इधर इधर हमारा x बड़ा है या y बड़ा है, अगेन x ही बड़ा है, तो डेल्टा x विल बी व्हाट, -1, डेल्टा y विल बी -m। मेरा ऑडियो गया? कैन एवरीबॉडी एल्स, कैन यू ऑल हियर मी? यस 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 यस। जिनको अगर आवाज नहीं आ रही अभी, एक बार वापस से साइन इन करके साइन आउट करके साइन इन कर लो एक बार, ओके। नेक्स्ट इधर इधर बड़ा क्या रहेगा, x या y? डेल्टा y will be what, -1, okay, because y is on the negative side, and delta x will be what, -1 upon m. Next cell, let's check the next cell. is in this case कौन बड़ा रहने वाला है, x और y? y will be greater, so delta y will be -1, delta x will be -1 upon m. Next one, in this case बड़ा कौन रहने वाला है, x या y? x रहने वाला है, so delta x will be +1 and delta y will be +m. तो आप लोगों ने कितने केसेस किए इधर, इफ यू सी ऑल टुगेदर वी हैव डन, अब मैं लाइन में इरेज कर रही हूँ, बहुत गंदा दिखता है इसलिए, वी हैव डन 8 केसेस। आपके कॉलेज में आपको 8 केसेस नहीं दिखाएंगे, मैं बताती हूँ कैसे बताएंगे। कॉलेज में आपको केस बाय केस एक्सप्लेन करने बोलेंगे। तो व्हाट विल डू इज, एक्चुअली हमारा डायग्राम ऐसा रहेगा, ओके, जहां हम लोग इधर लिखेंगे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7, केस 8, ये सब। कॉलेज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे आपको, कॉलेज में बोलेंगे इफ अ लाइन इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, okay, if x axis is moving from left hand side to the right hand side and y axis is moving from bottom to top, okay, ऐसा, and if your slope is less than 1, in that case x will be incremented by +1 and y will be incremented by +m, something like this, ऐसा explanation होगा। ये आप केस 1 के लिए लिखोगे, बाद में अगले स्टेप में जाके केस 2 के लिए लिखोगे। हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उन लोग एग्जाम कॉलेज में सिर्फ 4 केसेस आपको एक्सप्लेन करेंगे, केस 1 2 3 4, ये ऊपर के केसेस ये वाले,
और बोलेंगे नीचे के सिमिलरली आ जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में 8 केस का स्ट्रेट अवे आंसर लिख देंगे जैसे अभी हमने लिखा है। ओके, so that way your professor gets the answer for all 8 cases. Okay, मैं एक बार ये इरेज कर रही हूँ। अब डीडीए भाई साहब ने क्या बोला है वो ध्यान से देखते हैं। अब तक क्या हमने लाइन नहीं ड्रॉ किया, डीडीए का फर्स्ट स्टेप हमको समझ में आया है जो उसने बोला है। ठीक है, उसने बोला, डीडीए के एल्गोरिदम वाले के पास हमें चले जाते हैं। उसने बोला एल्गोरिदम क्या बोल रहा है उसका एल्गोरिदम बोल रहा है कि तुम या तो एक्स या तो डेल्टा एक्स सिलेक्ट करो या तो डेल्टा वाई सिलेक्ट करो। ओके, वो घूम फिर के पहला ये बोल रहा है डेल्टा एक्स सिलेक्ट करो या डेल्टा वाई सिलेक्ट करो। तो हम डीडीए को क्वेश्चन पूछते हैं, मैं सिलेक्ट करूं, ठीक है, बट ऑन व्हाट लॉजिक, क्या बेसिस पे मैं सिलेक्ट करूं, एक्स सिलेक्ट करूं या वाई सिलेक्ट करूं, क्या बेसिस पे सिलेक्ट करूं। तो वो बोलता है जो बड़ा है उसके बेसिस पे। ओके, तो जो बड़ा है हमने देखी ना, लाइन ड्रॉ करके देखी है, एक्स बड़ा आ रहा है क्या वाई बड़ा आ रहा है, उसके हिसाब से हमने सिलेक्ट किया, राइट। सो डीडीए बोल रहा है जो भी बिग है, ओके, बिग इन वैल्यू, उसको तुम सिलेक्ट करो। वैल्यू मतलब मॉड वैल्यू। ओके, सो अब इधर ध्यान से देखो, स्टेप 1 डीडीए एल्गोरिथम ने क्या बोला है। इनपुट ले लो जो भी 2 पॉइंट है, कैलकुलेट करो dx dy। dx मतलब क्या, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। अगर डेल्टा एक्स बड़ा है तो स्टेप्स तुम्हारे डेल्टा एक्स हो जाते हैं, अगर डेल्टा वाई बड़ा है तो स्टेप्स तुम्हारे डेल्टा वाई हो जाते हैं। अभी मेरे को एज अ स्टूडेंट नहीं समझ में आ रहा स्टेप्स मतलब क्या बोले क्या जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू दिस डायग्राम एंड अंडरस्टैंड जो हमको अब तक समझा है। जब मैंने ये डायग्राम बनाई तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया बार बार कि ये देखो एक्स बड़ा है, ये देखो बड़ी लाइन है, यहाँ पे देखो कम लाइन है। फिर मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया बड़ा, मैंने आपको बोला अगर मैं यहाँ पे बनाने जाऊं, एक्स के पॉइंट्स प्लॉट करने जाऊं तो देखो कितने ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं एक्स के। ओके, मगर वाई के अगर प्लॉट करने जाऊं तो वाई के इतने सारे पॉइंट्स नहीं आ रहे। दैट्स हाउ आई एक्सप्लेन्ड यू। ओके, तो द स्टेप्स मतलब क्या, डीडीए एल्गोरिथम ने क्या बोला है, मेरे पास दो पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में के जोड़ने वाले जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स अपने को ढूंढना है। तो जितने ज्यादा पॉइंट से आप एक लाइन को जोड़ोगे उतनी क्लियर लाइन आएगी, बिकॉज ज्यादा पिक्सल मीन्स बेटर क्लैरिटी। वी हैव अंडरस्टूड दैट राइट नाउ। ओके, सो अगर x बड़ा है, यहाँ पे जैसे हमको दिख रहा है x बड़ा है, तो अपन स्टेप्स मतलब क्या, steps are the number of points in between to join the two endpoints. We should select steps as delta x, जो बड़ा है वो। ओके, ये लाइन आपको मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, ये देखो डीडीए भाई साहब ने अपने को क्या बोला, ये मेरा पहला पॉइंट है, अरे यार कहाँ गया, ये मेरा पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। ओके, दिस इज माय लास्ट पॉइंट। ओके, डीडीए ने बोला आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, मगर इन बिटवीन के ये जो पॉइंट्स है वो आपको ढूंढ के लाना है यूजिंग डीडीए एल्गोरिथम, और फिर वो लाइन को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब डीडीए बोल रहा है जितने ज्यादा पॉइंट्स आएंगे ना बीच में, द मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स द बेटर लाइन इट विल बी। ऑफ कोर्स मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब मोर पिक्सल ना, तो बेटर लाइन, बेटर क्लैरिटी इट विल बी। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डीडीए सबसे पहले क्या बोलता है, तुम सिलेक्ट करो कि डेल्टा एक्स लेना है या डेल्टा वाई लेना है। तो हमने डीडीए को पूछा भाई साहब मैं सिलेक्ट क्या बेसिस पे करूं, तो उसने बोला जो बड़ा है उसके बेसिस पे तुम सिलेक्ट करो। अगर डेल्टा एक्स बड़ा है डेल्टा वाई से तो तुम बोलो स्टेप्स मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स टू ड्रॉ द लाइन विल बी डेल्टा एक्स, और अगर डेल्टा वाई बड़ा है तो स्टेप्स वुड बी डेल्टा वाई। ओके, चलो ये लॉजिक हमको समझ में आया जो भाई साहब ने बोला। ठीक है, अब मेरे को ये तो पता चल गया कि स्टेप्स क्या लेना है। स्टेप्स इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बिटवीन पॉइंट्स टू जॉइन द टू लाइंस, दैट इज स्टेप्स। ठीक है, अब वो बोल रहा है, अब मेरे दिमाग में एक पॉइंट आता है कि मेरा ये लाइन है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा सेकंड पॉइंट। जब मैं फर्स्ट पॉइंट पे थी इधर, ओके, तो मेरे को अगला पॉइंट तो बताओ कि क्या होना चाहिए, हाउ विल आई नो द नेक्स्ट पॉइंट।
ओके तो डीडीए भाई साहब बोलता है ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है ना x1 है, तो x2 क्या होगा, x2 विल बी x1 प्लस x इंक्रीमेंट। ओके वापस आई एम एक्सप्लेनिंग। जब मेरे को एक लाइन बनानी है एंड आई एम ऑन द वेरी फर्स्ट पॉइंट, मैं x1 पे हूँ और मेरा अगला पॉइंट ये होने वाला है सपोज, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि अगला पॉइंट क्या है? तो किसी को तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि x को कितना इंक्रीमेंट करना है। x भाई साहब यहाँ थे 1 पे थे और अभी x 3 पे जा रहा है सपोज, तो I have to increment it by 2 units, right? So somebody has to tell me. So that means I need to find out x increment and I need to find out y increment. Okay? X increment and y increment. Okay? तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि x increment लेना है कितना होना चाहिए and y increment कितना होना चाहिए? तो उसने अपने को एक फॉर्मूला दिया डीडीए ने बोला कि x इंक्रीमेंट होगा डेल्टा x अपॉन स्टेप्स एंड y इंक्रीमेंट होगा डेल्टा y अपॉन स्टेप्स। नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन केयरफुली। ये फॉर्मूला जैसे दिमाग में आता है, जैसे आप पढ़ते हो तो एज अ स्टूडेंट ओवरवेलमिंग लगता है, ऐसा लगता है कि अभी ये नया फॉर्मूला आ गया, एक और एक चीज रटनी पड़ेगी, ये क्यों आई? ओके ये तो गलत बात है, क्योंकि डीडीए से स्टार्टिंग से मैम ने ये एक्सप्लेन किया था कि या तो x प्लस 1 होगा या तो y प्लस 1 होगा, मतलब x हर बार 1 यूनिट से बढ़ना चाहिए या y हर बार 1 यूनिट से बढ़ना चाहिए, यही एक्सप्लेन किया। ये 8 केस में यही एक्सप्लेन किया, या तो x 1 यूनिट से बढ़ेगा या तो y 1 यूनिट से बढ़ेगा। ओके सो लेट्स सी दिस। ओके मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। यहाँ तक एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है क्या? नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी तो और कंफ्यूज हो जाओगे। हेलो ओके ठीक है। अभी देखो डीडीए भाई साहब ने ये एक सम है, ड्रॉ लाइन यूजिंग डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम फॉर द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट दिए हैं ठीक है। उसने क्या बोला था, कैलकुलेट करने बोला था dx dy, तो अपन पहले dx कैलकुलेट करते हैं। तो मैं dx अगर कैलकुलेट करूँ तो dx क्या आता है, x2 माइनस x1 मतलब 13 माइनस 10, dx आया मेरा 3। फिर dy कैलकुलेट करते हैं, dy क्या आता है, y2 माइनस y1 विच इज 30 माइनस 20 विच इज 10। ओके स्टेप 3 क्या रहेगा, अगर dx बड़ा क्या है, dy बड़ा है, तो अपन यहाँ क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि सिंस dy इज ग्रेटर देन dx, मॉड में हाँ, मॉड ऑफ dy इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ dx, ओके देयरफॉर steps is equal to dy is equal to 10. Okay now everybody just pay attention to this point. जैसे मैंने बोला कि dy बड़ा है dx से, तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है डायग्राम के हिसाब से वो हो सकता है इस वाले ऑक्टेंट में है, ओके इस वाले ऑक्टेंट में होगा, क्योंकि आंसर यही आ रहा है ना कि dy बड़ा है, dy बड़ा मतलब डेल्टा y बड़ा है, डेल्टा y बड़ा है मतलब मेरे दिमाग में क्या आता है कि y हर बार +1 होगा और x जो है वो अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है ऐसा मेरे को डीडीए ने सिखाया था, फिर जबरदस्ती एक फॉर्मूला लेकर आ गया x इंक्रीमेंट का। ओके तो फिलहाल अगेन लेट्स गो बैक टू दिस सम के हिसाब से dy बड़ा आया तो मैंने लिख दिया स्टेप्स इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू 10। ठीक है अभी डीडीए एल्गोरिथम ने मेरे को क्या बोला था, x इंक्रीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा x अपॉन स्टेप्स, y इंक्रीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा y अपॉन स्टेप्स। ठीक है सो आई एम राइटिंग हियर स्टेप 4, x इंक्रीमेंट is equal to delta x upon steps, y increment is equal to
डेल्टा y अपॉन स्टेप्स। जरा देखो, डेल्टा x अपना क्या आया है 3, ओके, डेल्टा x अपना 3 आया है, डेल्टा y अपना 10 आया है। तो अपन ने लिखे 3 अपॉन 10, इधर लिखे 10 अपॉन 10, आंसर आया 0.3, आंसर आया 1। कैन यू सी दिस? y इंक्रीमेंट इज 1। अब आपको समझ में आया डीडीए की लॉजिक जो था वो राइट है, ओके। डीडीए ने हमको क्या सिखाया था? वापस जाते हैं। डीडीए ने हमको बोला था जो बड़ा है वो +1 होते जाएगा, जो छोटा है वो अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट होगा। इसलिए डीडीए भाई साहब ने अपने एल्गोरिदम में फॉर्मूला भी वैसा ही दिया, जो बड़ा होता है वो स्टेप्स बन जाता है ना, डेल्टा वाई अपॉन स्टेप्स कर दोगे तो 1 आ जाएगा आंसर। तो इस फॉर्मूला से इधर x इंक्रीमेंट विल बी 1 और इधर y इंक्रीमेंट विल बी 1। ओके, इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है आपको? ओके, अब वापस से हम लोग स्टेप 1 टू, ये स्टेप 5 पे जाने से पहले स्टेप 1 to 4 वापस में देखती हूँ। हाँ, डीडीए ने मेरे को क्या बोला? या तो x सिलेक्ट कर या तो y सिलेक्ट कर। तो मैंने डीडीए क्वेश्चन पूछा क्या बेसिस पे मैं x सिलेक्ट करूँ या y सिलेक्ट करूँ? तो उसने बोला जो भी बड़ा है उसके बेसिस पे। तो स्टेप 1 डीडीए ने बोला कि आप अपने पॉइंट्स देख लो। पॉइंट्स मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। x1 y1 इज स्टार्टिंग पॉइंट, x2 y2 इज एंडिंग पॉइंट। स्टेप 2 में उसने क्या बोला? कैलकुलेट करो dx dy। कैलकुलेट कैसे करते हैं? डेल्टा x x2 माइनस x1, डेल्टा y इज y2 माइनस y1। फिर हमने चेक किया कि dx बड़ा है या dy बड़ा है। अगर dx बड़ा है तो स्टेप्स इज इक्वल टू dx, और अगर dy बड़ा है तो स्टेप्स इज इक्वल टू dy। ओके, फिर स्टेप 4 में हमने, उसने अपने को बोला x इंक्रीमेंट कैलकुलेट करो। ठीक है, x इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या दिया है? x इंक्रीमेंट का फॉर्मूला दिया है डेल्टा x अपॉन स्टेप्स, और y इंक्रीमेंट का फॉर्मूला दिया डेल्टा y अपॉन स्टेप्स। फिर बोला प्लॉट द फर्स्ट पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट प्लॉट कर दो। ठीक है, वो छोड़ दो। अब मेन ये आते हैं, ये दोनों। वो बोल रहा है कि जो नया पॉइंट रहेगा ना, वो क्या रहेगा? नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो रहेगा, न्यू कोऑर्डिनेट, ओके, वो रहेगा पुराना कोऑर्डिनेट प्लस x इंक्रीमेंट। सो x नेक्स्ट, ओके, x नेक्स्ट इज करंट x प्लस द x इंक्रीमेंट, ये बोल रहा है वो। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर ये मेरा पहला पॉइंट है तो अगला पॉइंट क्या रहेगा? ये पॉइंट प्लस द इंक्रीमेंटेड x, तो दैट इज हाउ आई विल गेट द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, देन step 7 is plot the point. How do I plot the point? I have to round off and plot the point. Okay, now remember this is the biggest drawback of DDA, जिसके वजह से अगला एल्गोरिथम आ रहा है। ओके, प्लॉट द पॉइंट बोल रहा है जो। अब मैं आपको एक सम पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड। एंड फाइनली वो बोल रहा है ये पूरे स्टेप्स आप रिपीट करते रहो फॉर स्टेप्स नंबर ऑफ टाइम। स्टेप नंबर ऑफ टाइम मतलब जितने जितने x आने चाहिए, जितना आपका स्टेप्स की वैल्यू आई, स्टेप्स की वैल्यू जो आई उतने नंबर ऑफ टाइम आप ये रिपीट करो। ठीक है, सो हम एक सम लेते हैं, उस ये जो सम दिया हुआ है उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एल्गोरिथम इन अ फ्लो कैसे आपको लाइन ड्रॉ करके देगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ड्रॉ लाइन यूजिंग डीडीए लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम फॉर द पॉइंट्स P1 10 20, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, P2 13 30, ये मेरा एंडिंग पॉइंट हो गया। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 होता है एक्सेप्ट इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरा पॉइंट ये है, उसका x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 मेरे को मालूम करना ना बड़ा क्या है, बड़ा डेल्टा x है या बड़ा डेल्टा y है। इसलिए मैंने क्या किया? कैलकुलेट किया dx एंड dy। ओके, जैसे ही मैंने dx एंड dy कैलकुलेट किया तो मेरे को पता चल गया कि dy भाई साहब बड़े हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि सिंस dy इज ग्रेटर देन dx, इसके लिए क्या होगा अगला स्टेप? स्टेप्स इज इक्वल टू dy। ओके, अब मैंने x इंक्रीमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। x इंक्रीमेंट इज व्हाट? डेल्टा x अपॉन स्टेप्स, y इंक्रीमेंट इज डेल्टा y अपॉन स्टेप्स। नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन, स्टेप 5 जो आपका एक्चुअल सम सॉल्विंग करने का पार्ट है। ओके, इसमें ओके व्हाट वी विल डू इज,
पहला इधर आपका कॉलम रहेगा के कॉलम, ओके। अगला रहेगा एक्स के वाई के, देन रहेगा एक्स के प्लस 1 वाई के प्लस 1, फिर रहेगा प्लॉट एक्स के प्लस 1 कॉमा वाई के प्लस 1, जो भी आप प्लॉट करने वाले हो, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला के मेरा मतलब फर्स्ट पॉइंट। अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था 1020, ये हमारा पहला पॉइंट है 1020, और जाना कहाँ तक है? 1330 तक। तो हमने स्टार्ट किया 1020। एक्स के प्लस 1 मतलब क्या? अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या होगा? करंट पॉइंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट इज करंट पॉइंट प्लस इंक्रीमेंट, ओके। तो मेरा करंट पॉइंट कितना है? 10। इंक्रीमेंट कितना है एक्स में? 0.3, तो ये मेरा बन गया 10.3। वाई के प्लस 1 क्या रहेगा मेरा? करंट पॉइंट विच इज 20, और न्यू पॉइंट क्या हो जाएगा? 21। अब जब मैं प्लॉट करूंगी ना इधर, आई विल नॉट प्लॉट डायरेक्टली, आई विल प्लॉट, रिमेंबर, राउंड ऑफ करके प्लॉट करूंगी, ओके। तो मैं 10.3 को आई विल प्लॉट एज 10 एंड दिस विल बिकम 21, ओके। अब मेरा जो अगला आएगा, तो ऐसे मेरे कितने आएंगे? पहली बात 1 2 3 4 5 6 7, कितने आएंगे आपके हिसाब से? हाउ मेनी? 10 आएंगे, बिकॉज अपने जो स्टेप्स थे वो 10 है, ओके। आई विल मेक श्योर कि 10 आने की जगह हो पहले, तो अगले पेज पे जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, शायद अभी आ जाएंगे, ओके। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। अब यहाँ पर जो ये जो पॉइंट रहने वाला है, ये वाला और ये वाला, इट विल बी व्हाट पॉइंट? इट विल नॉट बी ये वाले पॉइंट्स नहीं आएंगे, नो। क्योंकि अगर आप वापस से इसको 10 लिखोगे तो वापस x इंक्रीमेंट में 10.3 होगा, वापस राउंड ऑफ में वापस ये 10 ही हो जाएगा, ओके। वापस ये 10 हो जाएगा, इट विल बी नेवर एंडिंग देन, हमेशा ये 10 ही रहने वाला है, तो ये इनकरेक्ट है। तो आप क्या करोगे? यू विल टेक दीज पॉइंट्स, दीज प्लॉट किए हुए पॉइंट नहीं, जो x के प्लस 1 y के प्लस 1 में आए होंगे वो लोगे आप। सो दिस बिकम्स 10.3, दिस इज 21, ओके। सो नाउ व्हाट इज x के प्लस 1? 10.3 प्लस 0.3 कितना हुआ? 10.6, एंड दिस बिकम्स 22। तो राउंड ऑफ करके आंसर क्या आया आपका? 11 एंड 22, ओके। फिर अगला पॉइंट क्या रहेगा मेरा? 10.6 एंड 22, तो ये क्या आ जाएगा नेक्स्ट? 10.9 and 23, तो दिस बिकम्स 11 and 23। चलो सॉल्व करो, ये टेबल कंप्लीटली सॉल्व करो, प्रोवाइड मी आंसर्स फॉर ऑल दिस, कम ऑन स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट सॉल्विंग द एंटायर सम। चलो क्वेश्चन लिखो यहाँ से, एक सम आप ये वाला सॉल्व करो, मैं एक और एक सम आपको देती हूँ। राइट डाउन द क्वेश्चन, कम ऑन। ये रुकेगा कब मालूम है? ये रुकेगा जब आपका यहाँ पे आंसर 13 और 30 आएगा। ये देखो 1330 जो यहाँ लिखा हुआ है, जब वो आपका 10th नंबर स्टेप पे आंसर यही आया, 10 से एंड आंसर 1330 आया, दैट मीन्स योर सम इज राइट। चलो स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम।
लेट मी नो अगर इफ यू वांट मी टू चेंज द पेज, हाँ, तो अगले पेज पे जाऊंगी. Should I change the page? Okay. चलो, start solving this. Let's solve this together. उसके बाद में next draw कैसे करना है मैं आपको वो भी बताऊंगी. पहले ये solve करो. ओके, सो आफ्टर दिस हमको क्या करना है? स्टेप 6. ओके, मैं ये अगले पेज पे बनाती हूँ. इधर बनाती हूँ. जो आपका स्टेप 6 रहेगा ना, वो क्या होगा? दैट विल बी प्लॉटिंग ऑफ द लाइन. ओके, तो आपके x क्या आया है? x आपका ज्यादा नहीं है, आपका x है 10
11 12 13 इतना ही है। ओके, बट आपके जो y है दैट हैज, y क्या है मैं भूल गई, क्या नंबर था, y स्टार्टिंग फ्रॉम 20 एंड गोज अप टिल 30, है ना। तो आप y को बनाएंगे 20 21 22 23 24 25 26 27 30, ठीक है। टेन 11 12 एंड 13। सो आपका पहला पॉइंट था 10 20, राइट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पिक्सल। द सेकंड पॉइंट वाज, जरा रीड करके बताओ क्या है सेकंड पॉइंट, जो हमको प्लॉट करना है, हमको प्लॉट ये करने हैं सारे जो यहाँ पर है, 10 20, फिर 10 21 11 22, ओके 10 21 में मेरा अगला पॉइंट है, 11 22 इज माय नेक्स्ट पॉइंट, फिर और अगला पॉइंट क्या था, 11 23 11 24, एक मिनट, 11 23, हाँ 11 24, उसके बाद 12 25, थैंक यू, उसके बाद 12 26 ये वाला पॉइंट, ओके उसके बाद 12 27, उसके बाद 12 28, उसके बाद 13 29, ओके उसके बाद 13 30 होगा, 1 सेकेंड, 13 30, उसके बाद होगा, ओके इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वी हैव टू स्टार्ट जॉइनिंग, सेंटर से आप ज्वाइन करो, ये ऐसे, so this is how you draw the line, okay, so this was the first point given to you, this was the last point given to you, but वो दोनों बीच लाइन के बीच में वो दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन बन रही है वो जरूरी नहीं है स्ट्रेट ही हो, एक इंक्लिनेशन पे ही हो, इट कैन गो वाया मेनी अदर पिक्सेल्स आल्सो, ओके। सो डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम से आप क्या कर रहे हो, आपको इन बिटवीन के पिक्सेल्स ला रहे हो, ओके। नाउ आई थिंक आपके दिमाग में एल्गोरिथम बैठा होगा, आई एक्सप्लेन दैट एल्गोरिथम अगेन नाउ, ठीक है। डीडीए भाई साहब ने क्या बोला, ओके डीडीए भाई साहब का एल्गोरिथम क्या बोलता है पहले वो देखते हैं, ओके। एल्गोरिथम बोल रहा है कि डीडीए बोल रहा है कि अच्छा तुमको लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो या तो पहले तुम डेल्टा एक्स सिलेक्ट कर लो, डेल्टा एक्स मतलब डिजिटल डिफरेंशिएशन इन एक्स, जो फुल फॉर्म भी देखो डीडीए, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ओके। डीडीए इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, तो डीडीए भाई साहब बोलता है या तो तुम डेल्टा एक्स सिलेक्ट करो या तो तुम डेल्टा वाई सिलेक्ट करो, तो हम उसको पूछते हैं कि मैं डेल्टा एक्स सिलेक्ट करूं या डेल्टा वाई, ये क्या बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। सो डिसीजन इज बेस्ड ऑन, अगर डेल्टा एक्स बड़ा है तो डेल्टा एक्स सिलेक्ट कर लो, अगर डेल्टा वाई बड़ा है तो डेल्टा वाई सिलेक्ट करो। तो हाउ डू आई नो कि डेल्टा एक्स बड़ा है या डेल्टा वाई बड़ा है, ओके जिधर ज्यादा ज्यादा पॉइंट जिसके आने वाले हैं वो आपको सिलेक्ट करना, okay, so if delta x is bigger than delta y, then I will say कि delta x will be incremented by +1 and delta y will be incremented accordingly, okay, उस हिसाब से ऑटो केस का आप पहले ढूंढ करके देते हो, okay। so अभी एग्जाम में थियोरी कैसे लिखनी पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपको पहले अगर डीडीए का आपको थ्योरम आया, ओके एल्गोरिथम आया बेसिकली, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल फर्स्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, ओके ये ड्रॉ करोगे आप, उसके बाद में उसकी कुछ थियोरी लिखोगे जो मैं आपको अभी डिक्टेट कराऊंगी, लाइक अबाउट 5-6 पॉइंट्स है, ओके। उसके बाद में सेकंड आप वो एल्गो लिखोगे जो आप अपने स्टेप 1 में लिखे थे ना, स्टेप 1 रिसीव द इनपुट, वो एल्गो लिखोगे, ये वाला ये एल्गो, ये एल्गोरिथम लिखोगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 6 7 8 हो गया, ये आपकी आंसर है, ठीक है एल्गो लिखोगे, बात खत्म। अगर
उन्होंने ये नहीं पूछा तो वो दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं डीडीए पे, दूसरा वो आपको सम दे देंगे, स्ट्रेट अवे एक सम देंगे और बोलेंगे वो सम का डीडीए एल्गोरिथम यूज करके लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, जैसे हमने ये किया, सम दिया, सम आप सॉल्व करते गए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ओके, सम सॉल्व करके और डब्बे से पूरे पॉइंट्स लेकर आए आपने, एंड देन फाइनली आपने क्या किया, आपने वो पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, ओके, दैट्स हाउ यू कंप्लीटेड इट, ओके। आई विल गिव यू वन मोर सैंपल, पहले मैं क्विकली एक बार रिवाइज करा दूं, ओके, जो हमने अभी तक के पढ़े हैं, क्विकली रिवाइज कराती हूँ, फिर उसके बाद में आपको एक सम देती हूँ सॉल्व करने के लिए, एंड देन दैट्स इट फॉर द डे, ओके। सो क्विकली कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपको एनिमेशन भी आएगा, बट एनिमेशन आने से पहले we have to start, before we start running we have to learn to crawl and then stand and all that. So we'll start from pixel से पहले line से objects, एंड ऑब्जेक्ट की ड्राइंग होती है, ऑब्जेक्ट की क्लिपिंग होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर 3D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें करेंगे हम ऑब्जेक्ट्स के साथ, एंड देन फाइनली एनिमेशन सीखेंगे. सो ऑन दैट कॉन्सेप्ट वी स्टार्टेड विद व्हाट इज अ पिक्सल. ओके, द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल मतलब उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट or part of the screen or smallest indivisible unit of an image is called a pixel. Okay, next what we understood is resolution. What is resolution of a screen? Number of pixels that can fit into the screen without overlapping. जितने पिक्सल एक स्क्रीन में बैठ सकते हैं बिना एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रीन. इफ आई इंक्रीज द रेजोल्यूशन, अगर मैं रेजोल्यूशन बढ़ाऊंगी तो ज्यादा पिक्सल बैठना पड़ेंगे उसी स्क्रीन में. मेरी स्क्रीन तो बड़ी नहीं हो जाएगी ना, मेरा लैपटॉप 15 इंच का था, 15 इंच का ही रहेगा. ओके, इफ आई इंक्रीज द रेजोल्यूशन देन द नंबर ऑफ पिक्सल विल इंक्रीज. ज्यादा पिक्सल उतनी सी स्क्रीन में आने के लिए पिक्सल को छोटा होना पड़ेगा, इसलिए साइज ऑफ द इमेज विल डिक्रीज एंड क्वालिटी ऑफ द इमेज विल फाइनली इंक्रीज. जितने ज्यादा पिक्सल उतनी अच्छी क्वालिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट हमने क्या दिखा, व्हाट इफ आई डिक्रीज द रेजोल्यूशन. अगर मैं रेजोल्यूशन डिक्रीज करूंगी तो कम पिक्सल आएंगे, अगर कम पिक्सल 15 इंच में आएंगे तो मोटे मोटे आएंगे, बड़े बड़े आएंगे. अगर पिक्सल बड़े बड़े आएंगे तो इमेज की साइज बड़ी होगी. अगर इमेज की साइज बड़ी बड़ी होगी तो वो इमेज की क्वालिटी खराब होगी, डिक्रीज होगी, वो डिस्टॉर्टेड होगा. आपका आइकन जो आपको माई कंप्यूटर दिखाई देगा वो फटा हुआ दिखाई देगा पूरा. आपको ऐसा सीढ़ियों के जैसा स्टेयर स्टेप इफेक्ट दिखाई देगा. जब आप पेंट में एक लाइन बनाते हो उसको बहुत सारा जूम कर दोगे तो कैसा स्टेयर स्टेप इफेक्ट आता है वैसा दिखाई देगा. सो दैट्स रेजोल्यूशन एंड दैट इज पिक्सल. फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम से. जो पहला लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम आपके सिलेबस में है वो है डीडीए भाई साहब का, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर. डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई के ऊपर बेस्ड है इसलिए उसका नाम ऐसा है, डिफरेंशियल एनालाइजर. ओके, ये एल्गोरिथम का एक ड्रॉबैक है कि ये राउंड ऑफ करके वैल्यूज लेता है, इसलिए पॉइंट अपने एक्चुअल पॉइंट्स पे नहीं आए हैं. 10 मार्क्स. डीडीए का सम कितने मार्क का आएगा? 10 मार्क. सो इसका ड्रॉबैक ये है कि वो राउंड ऑफ करता है वैल्यूज को. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम आया. ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको वो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो देंगे क्वेश्चन में, बट वो बीच के पॉइंट्स जो हैं वो हमको ढूंढने हैं एंड हर वो पॉइंट्स को जोड़ कर फिर फाइनली एक लाइन ड्रॉ करनी है. तो वो बीच के पॉइंट्स कैसे लाया जाए, तो डीडीए भाई साहब बोलता है कि पॉइंट्स कैसे लाओगे, या तो तुम डेल्टा एक्स को सिलेक्ट करो या तो तुम डेल्टा वाई को सिलेक्ट करो. तो हम उसको पूछते हैं कि भाई डेल्टा एक्स को सिलेक्ट करना है या डेल्टा वाई को सिलेक्ट करना है, ये कैसे पता चलेगा. तो वो बोल रहा है कि अगर एक्स बड़ा है, जैसे इस ऑक्टेंट में एक्स बड़ा होने वाला है, अगर एक्स बड़ा है तो सिलेक्ट डेल्टा एक्स को +1 से इंक्रीमेंट कर दो, और अगर डेल्टा वाई बड़ा होता है कोई ऑक्टेंट में तो डेल्टा वाई को +1 से इंक्रीमेंट करो, बचा हुआ जो है स्लोप के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला आ जाएगा. ओके, तो उस हिसाब से हमने एक सम किया. ओके, हमने एक सम लिया. सम में हमने क्या किया, हमने पॉइंट्स ले लिए. स्टेप 1 में हमने इनिशियल पॉइंट सिर्फ एक्सेप्ट की, लिखा कि भाई ये क्वेश्चन है, जैसे 10th में हम लोग लिखते थे ना गिवन, वैसा गिवन लिख दिया. स्टेप 2 हमने कैलकुलेट किया डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई. जब कैलकुलेट किया तो पता चला कि y बड़ा है, इसलिए हमने बोल दिया, क्या बोला कि स्टेप्स जो होंगे वो डेल्टा y होंगे, मतलब 10 जो बड़ा आया. ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, स्टेप 4 x इंक्रीमेंट एंड y इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना है. x इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा x अपॉन स्टेप्स, एंड y इंक्रीमेंट का फॉर्मूला है डेल्टा y अपॉन स्टेप्स. ओके, कोई तो एक
डेफिनेटली इन दोनों में से कोई तो एक 1 आने वाला है, बिकॉज वही तो लॉजिक है उसका, या तो डेल्टा x प्लस 1 होगा या तो डेल्टा y प्लस 1 होगा। इस इन दिस केस ऑफ कोर्स डेल्टा y प्लस 1 होना था बिकॉज डेल्टा y बड़ा था। अब हम ये टेबल बनाते हैं जिसमें k स्टैंड्स फॉर स्टेप्स, ओके। xk स्टैंड्स फॉर, दिस इज करंट कितने करंट की स्पेलिंग, current pixels, okay, these two stands for next value and this stands for round off, जो आप round off करके plot कर रहे हो round off plotting, okay। अब आप लिख देते हो कितने स्टेप से आए हैं हमारे यहाँ पर 10 आए, इसलिए आप 1 से 10 लिख दो। x के लिया 10 20 से चालू किया, x के प्लस 1 y के प्लस 1 कैसे आएगा, x के प्लस 1 इज current x which is 10 plus x increment which is 0.3। अब इसका राउंड ऑफ करोगे तो 10 आ जाता है। दैट्स हाउ यू विल गो ऑन प्लॉटिंग। याद रखो जो अगले स्टेप में तुम वैल्यू लोगे वो प्लॉटेड वाली राउंड ऑफ वाली नहीं लेना है, आपको x के प्लस 1 और y के प्लस 1 वाली लेना है। अगर आप राउंडेड ऑफ वाली लोगे तो ये वापस से 10 हो जाता और इंक्रीमेंट करके वापस 10.3 हो जाता, वापस राउंड ऑफ करके वापस 10 होता, तो कभी आपका पॉइंट बढ़ता ही नहीं। इसलिए आपको राउंड ऑफ वाली नहीं लेनी है, x के प्लस 1 एंड y के प्लस 1 वाली लेनी है। ऐसा करते करते आपको तब स्टॉप करना है जब आपका जो गिवन क्वेश्चन में था वो आ जाता है और नंबर ऑफ स्टेप्स भी रीच हो जाते हैं एंड 1330 जो क्वेश्चन था आपका वहां पे आ जाता है, तो आप स्टॉप करोगे। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे इज यू विल प्लॉट जो भी आपके पिक्सल्स आए वो आप लाइन प्लॉट कर दोगे। दैट्स वेयर यू गेट योर 10 मार्क्स। तो दिस विल आइडियली कम फॉर 8 मार्क्स और 10 मार्क्स, और अगर इट इज अ वेरी सिंपल सम, दिस इज लाइक ये वाला सम, इट कुड आल्सो कम फॉर 5 मार्क्स, ओके। अब कॉम्प्लेक्स सम क्या होता है, डीडीए में कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सम है जो मैं आपको देने वाली हूँ अभी नेक्स्ट। सो अगला क्वेश्चन लिखो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। बस ये एक सम करना है एंड विल बी डन फॉर द डे, ओके। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओके, find intermediate points along the, okay, I'll write down the question. Find intermediate points along the line having endpoints 2020 and 1215 using DDA algo। चलो बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसमें बड़ा एक प्रॉब्लम है ये सम में। क्या प्रॉब्लम है, नेगेटिव, ओके। एनीबडी एल्स, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है, एग्जैक्टली इट इज डिक्रीजिंग। प्रॉब्लम ये है, देखो पीछे के सम में क्या था, पीछे के सम में ये पॉइंट थे 12 20 और ये था 12 नहीं, क्या था, आई फॉरगॉट, 10 20 और 13 30 था, ओके। 10 20 और 13 30 था। तो मेरे को समझ में आता है कि 10 से 13 जाना है, मतलब 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, इंक्रीमेंट करना है, करेक्ट, ओके। दिस आई अंडरस्टैंड that I have to increment from 10 to 30, but how can I increment from 20 to 12? Can you see that? So what is the general tendency that you will do, okay, if such a question comes? तो पहली बात 2-3 दिमाग में thought process आएंगे आपके। The first thought process would be that you will change the question। जैसे ये मेरा पॉइंट P1 था और ये P2 था ना पिछले सम में, तो तुम क्या कर दोगे इस सम के लिए, तुम बोलोगे P1 is 12-15 and P2 is 20-20। मैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये करेंगे कि क्वेश्चन बदल देंगे, इसको 0.2 करेंगे, इसको 0.1 करेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अपने मम्मी का पापा का राज नहीं चला है कि हम क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन जो है वही है। सो ये इनकरेक्ट है।
तो दूसरा क्या ऑप्शन है, मतलब मैं 20 को इंक्रीमेंट करके तो 21 पे ही जाऊंगी ना, 12 पे कैसे जाऊंगी? ओके, सो exactly, the very few students will take point P1 as 2020, okay, and point P2 as 1215 only, and every time condition is satisfied they will subtract 20 को 19, 18, 17, 16, 15 till you get 12. That's how you're supposed to solve the sum. दूसरा इस सम में अलग ट्रिक क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ. हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहली बात, आप इसमें इंक्रीमेंट नहीं करोगे, आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे. क्वेश्चन कभी बदल नहीं सकते हो, ये याद रखो. मैं सम सॉल्व कैसे करूं? मेरे को सबसे पहले तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई लाना होता है. हाउ डू आई सॉल्व द सम? तो स्टेप 1 क्या होता है अपना? स्टेप 1 होता है एक्सेप्ट इनिशियल कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, वो मैं पहले लिख दूं इतना, एक्सेप्ट इनिशियल कोऑर्डिनेट्स. तो आप बोलोगे P1 is 2020, मतलब x1 is 20, y1 is 20, P2 is 1215, मतलब x2 is 12, y2 is 15. ठीक है, अगला स्टेप मेरा क्या होता है? अगला स्टेप मेरा होता है कैलकुलेट dx एंड dy. ओके, अब जब मैं dx कैलकुलेट करूंगी तो मैं dx में क्या लिखते हैं अपन? dx का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होता है. x2 क्या है? 12 माइनस 20. तो क्या लिखूं मैं इधर, 8 या -8? ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द फॉर्मूला. ठीक है, इधर क्या बोला है? कैलकुलेट dx dy बोला है, बराबर है. बट जब कंपेयर कर रहा है ना, ये कंपैरिजन का स्टेप है. देखो, कंपेयर करते वक्त में वो क्या कंपेयर कर रहा है? मॉड. ये जब मैंने यहाँ बोला था ना x और y सिलेक्ट करो, ऑन व्हाट बेसिस? आई सेड जो बड़ा है, बड़ा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मॉड का वैल्यू. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कहाँ चला गया सम? आई हैव टू टेक इट एज मॉड. ओके, सो ये हमेशा याद रखना आप, हमेशा, दैट, मैं इसको रेड में लिख देती हूँ, always your delta x and delta y will be positive in dd है. पूरे cg की बात नहीं कर रही मैं. ओके, आप डेल्टा एक्स कैलकुलेट किए, नेक्स्ट आप कैलकुलेट करोगे डेल्टा वाई, विच इज y2 माइनस y1, विच इज व्हाट? 15 माइनस 20, विच इज व्हाट? 5. बड़ा कौन है? बड़ा कौन है हमारा? स्टेप 3, सिंस dx delta x is greater than delta y, therefore steps is equal to dx is equal to 8. स्टेप 4 क्या आएगा आपका? x increment is equal to delta x upon steps, which is how much? 8 upon 8 is equal to 1. y increment is equal to delta y upon steps, which is 8 upon, sorry, 8 है, which is 5 by, अरे यार, which is 5 by 8. okay, 5 by 8 का आंसर क्या आ रहा है आपका? जो भी आ रहा है कैलकुलेटर में एग्जैक्ट वैल्यू करके देखो. 0.625. ओके, थैंक यू. 0.625. इसको दो वैल्यू तक राउंड ऑफ करके 0.63 ले लो. 0.63 ले लो. ठीक है, स्टेप 5 क्या रहेगा आपका? पूरा सम सॉल्व करोगे आप वो टेबल, एंड स्टेप 6 वुड बी प्लॉटिंग द डायग्राम. चलो स्टेप चालू करो, सॉल्व करो ये सम. दिस इज द लास्ट सम एंड देन वी आर डन फॉर द डे. चलो सम सॉल्व करो. चलो, समझा ना आपको? कभी भी क्वेश्चन नहीं चेंज करने का, और अगर क्वेश्चन इंक्रीमेंटिंग फैशन में नहीं चल रहा है तो आप डिक्रीमेंट करो. एवरी टाइम योर वैल्यू विल डिक्रीमेंट बाय 1. मतलब मैं टेबल अगर ड्रॉ करूं, अच्छा आप क्वेश्चन लिखो पहले, फिर मैं टेबल पे आके बताती हूँ. Will we get the notes of today's lecture?
Yeah, you will get the entire recording. There will be printed notes also. Once we are through with the lecture, I mean once we are through with the batch, okay, कि हम कंफर्म हो जाता है, अभी फिलहाल काफी लोग डेमो के भी रहते हैं, so we will form a separate group, okay, not all the Pinnacle staff and all, between you and me, जहां पर आपका ये आज के जो लेक्चर हुआ रिकॉर्डिंग वो पूरी मिलेगी, आपके प्रिंटेड नोट्स भी आपको क्लासेस से मिलेंगे. आई विल ऑल्सो गिव यू रिटन नोट्स इन द सेंस, जो मैं जब अगर ये कोरोना का केस नहीं होता तो क्लासरूम में आई वुड हैव डिक्टेटेड, राइट, मैं नोट्स डिक्टेट करती आपको, तो वो मैं डिक्टेट करे हुए नोट्स अभी आपको दूंगी. ओके, सो जैसे इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम इन मी डिक्टेटिंग एंड यू राइटिंग, आई वुड राइट इट ऑन माय ओन, खुद लिख करके फोटो भेज दूंगी मैं आपको हमारे वाले ग्रुप में. कौन सा वाला ग्रुप? जो हम लोग फॉर्म करेंगे वंस द बैच इज स्टेबलाइज्ड, नॉट द पिनाकल पूरे जनता के साथ नहीं, सिर्फ ओनली एक्सक्लूसिव सीजी बैच जब हम फॉर्म करेंगे तब. मीनवाइल आपको इस आई थिंक 1 या 2 लेक्चर का टाइम जाएगा जब ये बैच, ये ग्रुप फॉर्म हो जाएगा. मीनवाइल आप सम करो. आपको प्रिंटेड नोट्स के अलावा हैंड रिटन नोट्स जो हम लोग क्लास में लिख देते हैं, सो दैट इजियर लर्निंग, फास्टर लर्निंग, एग्जाम में जल्दी आंसर याद हो जाए, वो सब कॉन्सेप्ट से हो, वो भी दिया जाएगा. Just let me know if you finish this much so that I can start with the step 5. आर.के. मौर्य की बुक आप रेफर कर सकते हो, रेफरेंस बुक इफ आस्किंग मी. लेकिन जो आपके नोट्स रहेंगे, जो मैं हैंड रिटन भी दूंगी या जो भी आपके प्रिंटेड भी रहेंगे, इट्स ऑल बेस्ड ऑन द रेफरेंस बुक ओनली. बेकर की भी बुक होती है एक, बट ऑफ कोर्स दोज आर ऑल राजेश आर.के. मौर्य जो मैं बोल रही हूँ, राजेश मौर्य है, वो आप यूज, मतलब अगर आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हो. इसके प्रैक्टिकल होते हैं क्या? हाँ, हाँ होते हैं. फर्स्ट, one second, you want me to write down the name of the author? Name of the author is Rajesh K. Maurya. Okay, ये author है. सेम इसके प्रिंटेड नोट्स आपके यही रहेंगे, डिट्टो. एंड जो आपको मैं डिक्टेट कराऊंगी या जिसकी फोटोग्राफ्स दूंगी, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट विल बी अ सिंप्लीफाइड वर्जन. आई मीन very simplified version. You'll start loving CG after that. और किसने एक क्वेश्चन और क्या पूछा था? प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल यही होंगे, लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, सर्कल ड्रॉ करके दिखाओ, दीज आर द प्रैक्टिकल्स. कोई तो लैंग्वेज में होंगे, आपके कॉलेज के प्रोफेसर को जो लैंग्वेज पसंद आती है उस लैंग्वेज में होगा, इधर सी और जावा, व्हाटएवर. Depends college to college. Some colleges do it in C, some in C++, some in Java, as in आपके कॉलेज के लैब के ऊपर होता है. You done with this page? Should I start with step 5? Done step 5. Okay. So I'll start with step 5. भाई सबका done भी हो गया है. Which page should I? AutoCAD इस पर भी बेस्ड है क्या? No, no. Not exactly. AutoCAD नहीं. मतलब advanced variant में जब if you'll go in not even in advanced actually, no. Step 5. K, xk, yk, xk plus 1, yk plus 1. फिर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? राउंड प्लॉटिंग ऑफ xk plus 1, yk plus 1.
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay. One second. See, I've been teaching CG since I think 10 years now. What I see is they more or less the syllabus remains the same. Just जो मॉड्यूल 1 था वो मॉड्यूल 2 हो जाता है, मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 5 हो जाता है, something like that. And the other thing is कभी कभार एक दो टॉपिक हटा देते, कभी कभार एक दो टॉपिक ऐड कर देते. फॉर एग्जांपल, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम they've added animation. I used to teach IT also. IT had CG and virtual reality. सब्जेक्ट का नाम CGVR था. उस वर्चुअल रियलिटी में सब कुछ था, यू नो, कि virtually operation karna, and a virtual patient on which a doctor will operate, you know that. Or else you might have seen virtual reality in, I think, Smash wale jo games they karate hain in I think Lower Parel and all that, they have virtual reality. So all that was part of IT को था ये. So उसमें से खाली एक animation का part they've removed and given to computer branch now. Otherwise more or less the subject has always remained the same. वो क्या करने वाले, लाइन को लाइन ही बनाएंगे ना, और कैसे बनाएंगे. Anyway, so I'll just 2020 था ना, पॉइंट क्या था, 2020 वाहियात साल. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बड़ा था एक. हाँ, सो द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी 19 and 20 minus 0.625, right? 63 0.63. Okay, that is 19.37. राउंड ऑफ करोगे तो it becomes 19 and 19. Okay, the next point is 19.37. This will become 18. This is what, 18.74. Thank you. This is 18 and 19. Okay, next is 18 and 18.74. This becomes 17 and 18.11. This becomes 17 and 18. Okay, this is 17 and 18.11. This becomes 16 and 17.48. This will remain 16 and this will become 17. 16, 17.48, 15 and 16.85. This will become 15 and 17. This is 15 and 16.85, and 14 and 16.22. 14 and 16. This is 14 and 16.22. This will become 13 and 15.59. Okay, this is 13, 15.59. This will become 12 and this should become 14.96, which is 12 and 15. Okay, after this is nothing but step 6, where you will plotting of round of values. Y has gone from 20, both, there's no place over here. Is there any need for me to draw, or you all have understood? Should I draw, or is it okay if you all have understood?
Okay. ठीक है. So understood it. I'm assuming you all are drawing it. Huh? Don't leave it to the I'm not drawing. You will also not draw it. Just plot the diagram and try and joining the diagram like this. Okay. After plotting the pixel, try and join the line also. Of course. Which college? But I mean, you have to name the autonomous college. This subject will always be there, be it autonomous or be it Mumbai University or Pune University or whatever university. This subject will always be there. It forms the base of computer engineering. Screen, pixel, ये सब तो they'll have to explain you, right? So what is a drawback of this particular algorithm? The drawback is that the actual point being 19.37. ये देखो, अरे यार, actual point is 19.37, but still we are plotting 19. So what happens is there is a drifting away of points. So I am plotting it as say 11 and 24, but not necessarily it is 11 and 24. It could be यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ भी हो सकता है, 11.5 something भी हो सकता है. Okay, but because there is rounding of values, therefore the drawback is drifting away of points from their actual location. There are two drawbacks. Okay, one is drifting away of points from their actual location, and the second drawback is calculation. Of course, if I'm doing rounding off, okay, there is a calculation involved. Okay, so that calculation, every calculation requires a processor. A decent processor would be required, and therefore cost is involved in it. Okay, so ideally, if you are asking me what is the drawback, okay, the first drawback is drifting away of points from their actual location. And the second drawback is rounding off is time consuming. These are the two drawbacks of DDA line drawing algorithm. As a result of this drawback comes the other algorithm called as Bressenham line drawing algorithm. And of course, it is a much complex algorithm compared to DDA. DDA was very simple, very happy-go-lucky kind of an algorithm. Bressenham is not like that, which we'll see in the next lecture. You need not to worry about it. So quickly, DDA algorithm is based on the concept of slope. DDA बोलता है that either x will increment or y will increment. X increment होगा या y increment होगा depends on the x बड़ा है या y बड़ा है. So if x is bigger, that means more number of points can be accommodated in the x-axis. Then x will be incremented by +1. If more number of points would be accommodated in the y-axis, then y will be incremented by +1. So the algorithm is saying that you calculate dx and dy. If dx is greater than dy, then steps is equal to dx, else steps will be dy. Okay, once you've calculated dx and dy, then you calculate x increment and y increment. X increment is delta x upon steps, and y increment is delta y upon steps. You have to plot the first point and then start calculating the next coordinates. Next coordinate would always be current coordinate plus x increment. Okay, this is current plus x incrementing coordinates. Okay, once you've calculated the next coordinate, you will start plotting those points, but you have to round off those points and then plot. Okay, as a result, since you're rounding off, there comes a drawback. There are two drawbacks. One is because you round off, the points drift away from their actual location, and round off becomes time consuming. Okay, we've done two sums on DDA. One is a simple sum जहाँ incrementing fashion में चल रहा है, not a problem. While the other sum which we did was in a decrementing fashion. मतलब 20 से 12 जाना है आपको, तो हर बार आपको decrement करना है. And the factor that you have to remember always is
always delta x and delta y will be positive in DDA. Never dx and dy will be negative. Okay. And once you solve all that, you have to draw a table. Table में जितने steps से उतने आएंगे, and finally steps वाले last step पर ही you will get the last point. Then you have to plot the diagram. You have to plot the pixels first and then join all the pixels, and that's how your sum will be completed for 8 or 10 marks. Okay. Any doubt pertaining to today's lecture? Okay. So we'll conclude next Monday. We'll meet at the same time for Bresenham line drawing algorithm. Okay. We'll do 2 sums on Bresenham and algorithm. Will you teach us on what? IDE. Do you want me to teach on some other platform apart from Zoom? Is that the question? अच्छा, code or not? No. कोडिंग कॉन्सेप्ट जो है, जो कोडिंग वाला पार्ट है आपका सीजी के अंदर, दैट्स कंप्लीटली रिलेटेड टू सी, एंड आई विल नॉट, दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर syllabus in CG, because the entire CG subject is filled with derivation and sum. We will itself find it very difficult to complete the syllabus because it is really huge in terms of derivation, because आपको सारे derivation रटने नहीं है, neither any formulas you will ratify. I will make sure that nothing is ratified over here. So for that we will require a lot of time. So technically, if you ask me, practicals cover हो पाएंगे कि नहीं? No, practicals are not a part of this subject. So anything else, or should we conclude? ठीक है, we'll conclude. Reference book recommend. I said reference book is Rajesh K Maurya. मैं वापस लिख देती हूँ इधर, Rajesh K Maurya. Okay. Rajesh K Maurya is the reference book. Okay. See you all next time. Take care. Bye. Bye bye. Thank you.